हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो लेट अस स्टार्ट. इन द सेकंड क्लास we have seen angle with respect to x-axis. Now let us see angle with respect to y-axis. So y-axis पे क्या होगा? Pi by 2 90 degree will be there and 3 pi by 2 270 degree will be there. So हमें angle को pi by 2 and 3 pi by 2 के रेस्पेक्ट में लिखना है, या फिर यदि एंगल pi by 2 या 3 pi by 2 के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे अंडर दिस कैटेगरी. सो इस तरह के एंगल्स में क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90 डिग्री कंपैरिजन करना है. सो ऑल द एंगल्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लेस देन 90 डिग्री. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल्स विल बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस थीटा. Second quadrant will be more than pi by 2. So all the angles of second quadrant will be written as pi by 2 plus theta. Third quadrant is smaller than 3 pi by 2. Fourth quadrant greater than 3 pi by 2. Okay? Because anti-clockwise is considered positive direction. So this one is 3 pi by 2 minus theta. And this one is 3 pi by 2 plus theta. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि एंगल ऐसे लिखा हुआ है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थॉट क्लियर होनी चाहिए. नाउ देर आर सम रूल्स. दो रूल हैं, ये टू रूल्स आपको फॉलो करना है. सो व्हेनेवर एंगल इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फंक्शन विल चेंज. आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन चेंज हो जाएगी. जैसे यदि ओरिजिनली साइन फंक्शन गिवन है प्रॉब्लम में तो हम लोग साइन को कन्वर्ट करके कॉस लिखेंगे. यदि कॉस गिवन है तो साइन लिखेंगे. इसी तरह से टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा. सेक विल बी कन्वर्टेड इनटू कोसेक, कोसेक विल बी कन्वर्टेड इनटू सेक. नाउ सेकेंड रूल, साइन ऑफ द आउटपुट means final outcome. Sign of the final outcome is decided by the quadrant and original function. Fine. जो original function था और एंगल किस क्वाड्रेंट में है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम साइन डिसाइड करेंगे फाइनल आउटपुट का साइन क्या होगा. सो लेट अस सी सम एग्जांपल. इसी रूल को फॉलो करते हुए हम एग्जांपल को फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एंगल में पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब प्रेजेंट है, मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है. सो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस रूल 1, फंक्शन विल चेंज. सो कॉस विल चेंज इनटू साइन. मैंने चेंज करके लिख दिया, पाई बाई 2 को हटा देंगे और सिर्फ एक्स लिखेंगे. जो हमारा एक्यूट एंगल है सिर्फ उसको लिखेंगे. सो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स में. रूल नंबर 2, sign of the output is decided by the quadrant and original function. Original function है हमारे पास cos. Okay, original function है cos and quadrant, this is second quadrant. So cos and second quadrant, cos in second quadrant negative sign, so minus sin x. Now 3 pi by 2 दिख रहा है, function will change, sin becomes cos. Now this is fourth quadrant sine in fourth quadrant negative, so it will be negative minus cos x. Again with respect to y axis tan will change into cot, and this is third quadrant tan is positive, so it will be positive. Next again with respect to y axis sec will change into cosec, and quadrant, this is fourth quadrant sec is positive, so it will be positive. So these are some examples how we should follow the rules when the angle is written with respect to y axis. Now let us see some selected problems from class worksheet 3 and home worksheet 3. So problem number 1, we will follow the rule for angles with respect to x axis. So sine 315 degree, this is fourth quadrant.
So fourth quadrant, it should be written as 360 minus acute angle. So it is 45 degree. Fourth quadrant sign is negative. So minus sine 45 degree. Correct? Fourth quadrant sign is negative. This is with respect to x-axis. Angle with respect to x-axis. Minus sine 45 degree minus 1 by root 2. 210 degree. This is third quadrant. So this should be written as cos 180 plus 30 degree. And third quadrant cos is negative, so minus cos 30 degree. So that becomes minus root 3 by 2. Now third bit we can clearly see the angle is not in the first rotation. The angle goes beyond first rotation. First rotation is up to 360 degree. एंड दिस एंगल इज मोर देन 360 डिग्री. तो थोड़ा रूल आप इसको फॉलो करेंगे, मैं यहां पर किस तरह से बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. सो माइनस 480 डिग्री. सबसे पहले इस माइनस को आप लोग हटाइए बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन. सो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो यू कैन जस्ट रिमूव द माइनस साइन फॉर कॉस. कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन. सो कॉस में यदि एंगल नेगेटिव है यू विल राइट एज पॉजिटिव. 480. अब डिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, डिवीजन कैसे हमें करना है. सो ये है 480. देखो जनरली क्या होता है, हम लोग बहुत सारे रूल फॉलो करते हैं, मैं एक रूल के बारे में बात कर रहा हूं. देखो 180 है. अब यदि हम जनरल डिवीजन करें मान लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 360. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं. यदि ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 120 डिग्री. नाउ इस तरह का डिवीजन हमें इस टॉपिक में अवॉइड करना है. जो रूल मैं बता रहा हूं, हमें क्या करना है, ये जो एंगल आएगा दिस एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री. नेगेटिव भी चलेगा लेकिन लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये मोर देन 90 डिग्री है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम फटाफट इसको एक इंक्रीज कर देंगे. यदि ये 2 था तो हम इसको 3 कर देंगे. फाइन. ये रूल, एक रूल हम लोग फॉलो करेंगे, आराम से हमारे सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे. तो ये आ जाएगा अब -60 विच इज लेस देन 90. अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला था दिस इज मोर देन 1 रोटेशन. सो याद रहे यदि ये सेकेंड रोटेशन है तो सेकेंड रोटेशन में ये होगा 3 पाई. ठीक है, ये होगा 2 पाई. फाइन. ये सेकेंड रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये हो जाएगा 4 पाई. दिस इज सेकेंड रोटेशन. सेकेंड रोटेशन में एंगल कैसे होगी, फर्स्ट रोटेशन में थी पाई, ये तो थीटा थी, थोड़ी ये थी पाई माइनस थीटा, ये थी पाई प्लस थीटा, और ये थी 2 पाई माइनस थीटा इन द फर्स्ट रोटेशन. सेकेंड रोटेशन में 2 पाई ऐड कर देंगे सभी के साथ, ये बन जाएगी 2 पाई प्लस थीटा, ये बन जाएगी 3 पाई माइनस थीटा, और ये बन जाएगी 3 पाई प्लस थीटा, एंड दिस विल बी 4 पाई माइनस थीटा. दैट मीन्स यदि सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास इस तरह से एंगल रिटर्न होगी. तो अब ध्यान से देखिए 480 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 480 इज रिटन एज 3 इंटू 180 माइनस 60. तो हो गया, आपको देखो पता चल रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये 3 पाई माइनस थीटा. फाइन. सो थीटा शुड बी एक्यूट एंगल. जो आपका रिमाइंडर है वो एक्यूट एंगल बस होना चाहिए. इसको बस फॉलो कीजिए, आराम से सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो लेट मी रिमूव दिस एंड जस्ट राइट द आंसर. क्वाड्रेंट आपको मिल गया है. थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट आया, 3 पाई माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट और एंगल है 60 डिग्री. तो सबसे पहले तो आप लिख लो cos 60, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा. सो माइनस cos 60 that is minus 1 by 2. Done. This is one method I have told, some trick I have applied here. Fine. Next, fourth bit. So 1125. सबसे पहले तो there is a negative sign. We know that sine is odd function. Only cos and sec are even functions. So minus will come outside. Minus sine 1125 degree. और इस 1125 को अब हम लोग डिवाइड कर देंगे with 180. 180 से हम डिवाइड कर देते हैं. फाइन. सो 6. सो दिस बिकम्स 1080. So this will become 45.
that means it becomes minus sine 6 into 180 plus 45 degree. 6 into 180 plus 45 degree. Fine. So मैंने बताया था all the even multiples of pi will be this side. ठीक है, and all the odd multiples of pi will be this side. Pi, 3 pi, 5 pi, जो भी है. तो 6 pi is here plus 45 first quadrant. 6 pi plus 45. और ऐसे भी कभी भी आपको 2 पाई का मल्टीपल दिखेगा, 2 पाई का मल्टीपल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी एंगल में 2 पाई का मल्टीपल दिखेगा तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर देंगे. 2 पाई का मल्टीपल आप डायरेक्टली रिमूव कर देंगे. फाइन. सो ये बन जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री एंड दैट विल बी माइनस 1/√2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करनी है. So cos 510, cos 330, sin 390 and cos 120. Now सबसे पहले हम with respect to x axis लिखेंगे 510. अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में. So 540 मतलब 3 into 180. 3 into 180 is nearest multiple of 180. फाइन. जैसे हम 510 को डिवाइड करेंगे 180 से तो हम 3 टाइम्स में करेंगे तो ये आ जाएगा 540 एंड रिमाइंडर विल बी -30. इसीलिए 510 को लिखेंगे 540 -30. सो 3 इंटू 180 -30. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये आ जाएगी हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, सो माइनस कॉस 30 डिग्री. दिस वी हैव रिटन दिस. Now 330 is in fourth quadrant, so 360 minus 30, fourth quadrant cos is positive, we got this, cos 360 minus 30 is cos 30. 390, so 360 में ऐड करनी पड़ेगी 30 और 360 को आप बस क्लोज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. Any multiple of 360, any multiple of 360 if present in the angle, you just remove that. तो 360 को आप रिमूव कर दो, आपके पास सिर्फ 30 है, आपने लिख दिया sin 30 डिग्री. Now this one 120 is in second quadrant, so cos 180 minus 60. Second quadrant cos is negative, so negative sign, and acute angle is 60, so it becomes minus cos 60 degree. अब बस आप वैल्यू पुट कर दो. cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2. सिंप्लीफाई कर देंगे, we get -1. That is what we had to prove. Next we have problem number 5. प्रूव करनी है. So LHS से हमने स्टार्ट किया है. So first term we can see cos 90 plus theta. Now 90 है, that means with respect to y axis है, so cos will get converted into sin, and 90 plus theta, this is in second quadrant. Second quadrant cos will be negative, इसीलिए ये minus sin आ गई. So cos 90 plus theta is minus sin theta. Next sec minus theta, cos and sec are even function. So एंगल के साथ यदि माइनस साइन है तो वो रिमूव हो जाएगी. sec of minus theta will be sec theta. Then tan 180 minus theta, this is in second quadrant. Okay, this is in second quadrant. Tan is negative in the second quadrant, and this is with respect to x axis 180 minus theta. So this will become minus tan theta. Fourth one, sec 360 minus theta. So 360 minus theta is in second quadrant, and second quadrant sec will be positive, so it becomes sec theta. Sin 180 plus theta, 180 plus theta third quadrant sin is negative, so minus sin theta. Cot 90 minus theta, 90 minus theta is first quadrant, so cot 90 minus theta will simply become tan theta. अब आप देखो चीजें कैंसिल हो जा रही है, साइन कैंसिल हो गया, या माइनस साइन थीटा आप कैंसिल कर दो, फाइन. सेक थीटा कैंसिल कर दो, लेकिन अब हमारे पास है माइनस टैन थीटा बाई टैन थीटा. तो टैन थीटा तो कैंसिल हो गई, बट -1 इज लेफ्ट, एंड दिस इज आवर RHS, हेंस प्रूव. लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6. सो फर्स्ट थिंग गिवन है ABCD आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. चलिए आइए प्रूव करते हैं. सो LHS से हम स्टार्ट किए हैं. cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D.
सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, जो इसका सबसे पहली बात तो ये इस तरह से, फाइन। तो इसमें जो भी अपोजिट एंगल होंगी, मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, सो ए प्लस सी विल बी 180, सिमिलरली बी प्लस डी विल ऑल्सो बी 180। सो ए को हमने लिख दिया 180 माइनस सी, सिमिलरली बी को हमने लिख दिया 180 माइनस डी। हम जानते हैं cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, करेक्ट, बिकॉज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव। सो ये बन गया माइनस cos सी, ये हो गया माइनस cos डी, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज। नाउ माइनस cos सी प्लस cos सी कैंसिल, minus cos d plus cos d cancel, we are getting 0, and that is our RHS. Let us see problem number 7. So this time it is a general quadrilateral ABCD, any quadrilateral ABCD. So LHS से हम लोग start कर रहे हैं, first bit. So sin A plus B plus sin C plus D. Now we know that A plus B plus C plus D is equal to 360 degrees. Sum of all the angles of quadrilateral is 360 degree. So A plus B can be written as 360 minus C plus D according to this. Second को हमने as it is रहने दिया. Now we know that sin 360 minus theta is minus sin theta because it is the fourth quadrant. Fourth quadrant sin is negative. So this becomes minus sin C plus D, और ये इसी तरह से प्लस sin C plus D है, दोनों कैंसिल हो गया, we got 0, that is our RHS. सेम लॉजिक हम लोग सेकेंड बिट में अप्लाई कर देंगे. सो सेकेंड बिट LHS इज cos A plus B. अगेन A plus B को जैसे हमने पहले लिखा था सेम 360 माइनस C plus D. सो दिस बिकम्स cos C plus D. फाइन, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. बट साइन नेगेटिव था इसीलिए माइनस आ रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बट cos इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दैट इज आवर RHS. प्रॉब्लम नंबर 9. LHS से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. So cos pi plus x cos minus x sin pi minus x cos pi by 2 plus x. इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट cos pi plus x. So pi plus x is in third quadrant. We know that cos in the third quadrant it is negative minus cos theta. Third quadrant में tan and cot are positive. Cos is negative, so it is written minus cos x. Second one cos minus x. Cos is even function, so cos of minus x simply we can write cos x. एंगल में यदि नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को हम रिमूव कर देंगे, because cos and sec are even function. So this is cos x. Sin pi minus x, second quadrant sin is positive, so it becomes sin x. Cos pi by 2 plus x, this is second quadrant. This is second quadrant and cos is negative in the second quadrant. So it is with respect to y-axis, so cos will change into sin and cos in the second quadrant, so negative. Fine, cos will change into sin and cos in the second quadrant, negative sign. Now it becomes minus cos square x by minus sin square x, minus cancel हो गया, we got cot square x, that is the answer. Next, second bit. Second bit, cos 3 pi by 2 plus x. Now we see 3 pi by 2 means with respect to y-axis. So if it is with respect to y-axis, so let's see the quadrant cos 3 pi by 2 plus x. Beginning में हमने discuss किया था. So this will be fourth quadrant. So fourth quadrant and with respect to y-axis, function will change. It will become sin x and fourth quadrant cos is positive. So it will have plus sign. So cos 3 pi by 2 plus x is sin x. So we have written sin x. Next, cos 2 pi plus x. 2 pi, any multiple of 2 pi we can remove. So we can simply write cos x. Cot 3 pi by 2 minus x. 3 pi by 2 minus x, this is third quadrant and with respect to y-axis. So cot will change into tan and it will be positive
because cot is positive in the third quadrant. So okay, it is with respect to y-axis, that's why cot becomes tan, and positive because cot is positive in the third quadrant. Again, any multiple of 2 pi can be removed, so we get cot x. Done. And now simply multiply. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया sin x cos x और tan x को लिख दिया sin x by cos x. फिर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, cot x को लिख दिया cos x by sin x. Here cos x cancel, sin x into sin x, it becomes sin square x. Here sin x cancel and cos x into cos x becomes cos square x, and this identity we know the value is 1, that is our RHS, hence proved. Problem number 10. So prove करनी है, LHS से हम लोग start करते हैं. So you can see that 3 pi by 2 and 5 pi by 2 पे फोकस की हुई है. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा डिफाइन कर देते हैं. क्या होता है, ये होता है पाई बाई 2, करेक्ट, एंड दिस पोजीशन इज 3 पाई बाई 2. अब यदि हम एक रोटेशन और आगे चले जाएं, मतलब 2 पाई को क्रॉस करके यहाँ चले आए, तो ये पोजीशन हो जाएगी 5 पाई बाई 2. फिर से और आगे जाएंगे 7 पाई बाई 2, फिर आगे जाएंगे 9 पाई बाई 2. सो लाइक दैट इट विल कंटिन्यू. सो थोड़ा आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, वेयर विल बी 3 पाई बाई 2 एंड वेयर विल बी 5 पाई बाई 2. ओके, so this will be the position of 5 pi by 2, this is the position of 3 pi by 2. 3 pi by 2 minus theta, so 3 pi by 2 से यदि माइनस करेंगे तो we are in the third quadrant, और प्लस करेंगे तो we are in the fourth quadrant. Similarly 5 pi by 2 से माइनस करेंगे so we are in the first quadrant, माइनस, और प्लस करेंगे तो we are in the सेकेंड क्वाड्रेंट. सो इस तरह से हम क्वाड्रेंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. ध्यान रखेंगे माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस. नाउ सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट. 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट सेक इज नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव साइन आ जाएगी, लेकिन एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, सो सेक विल बिकम कोसेक. So sec 3 pi by 2 minus theta, it becomes minus cosec theta. Third quadrant negative sign, क्योंकि sec in third quadrant negative होता है, and function will change because angle is with respect to y axis. Next sec theta minus 5 pi by 2, इसको हम लोग पहले थोड़ा modify करेंगे. So sec theta minus 5 pi by 2 will be written as sec माइनस कॉमन लिया एंगल में and 5 pi by 2 minus theta. Now we know that sec के अंदर में यदि एंगल में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को हम रिमूव कर सकते हैं. तो sec 5 pi by 2 minus theta. 5 pi by 2 minus theta is in first quadrant. First quadrant sec is positive, इसीलिए ये पॉजिटिव है, लेकिन with respect to y axis है, so sec will become cosec. Then tan 5 pi by 2 plus theta, 5 pi by 2 plus theta second quadrant, tan will be negative, tan will be converted into cot. Tan theta minus 3 pi by 2, तो पहले हमें इसे लिखना पड़ेगा tan 3 pi by 2 minus theta, और विथ नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, हम एक माइनस कॉमन ले लिए. तो हम लोग जानते हैं tan इज ऑड फंक्शन, तो ये जो माइनस साइन है, दिस माइनस विल कम आउटसाइड, इट विल बिकम माइनस tan 3 pi by 2 minus theta. फाइन, माइनस विल कम आउटसाइड, tan 3 pi by 2 minus theta. So tan 3 pi by 2 minus theta is in third quadrant. Third quadrant tan is positive, so tan will be converted into cot and we are getting cot theta. ये इसके कारण cot theta आई है, पहले से माइनस था इसलिए माइनस है. So tan 5 pi by 2 plus theta हमें ये मिल गया था. अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, tan theta minus 3 pi by 2 कैलकुलेट किया, दिस इज माइनस cot theta. मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज -1. दिस इज आवर RHS, hence proved. Now let us see few problems from home worksheet. So problem number 3,
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ cos x। सबसे पहले हम cos x पे फोकस करेंगे, विच इज द एंगल पे फोकस करेंगे। वी नो cos minimum value is -1, maximum value is +1, so we can see this is the cos graph, fine। तो cos actually this is -π/2, if you see one full curve then this is like -π/2, fine, this is 0, this is π/2, और ये तो इसको कंप्लीट करना चाहें तो इस तरह से ये ग्राफ 2π पे कंप्लीट हो जाती है। सो 0 to 2π, दिस इज द ग्राफ। नाउ minimum value for cos is -1 and maximum value is +1, so this way we have written। अब ये जो -1 से 1 का है ये इंटरवल अब रिड्यूस हो गया, 0 to 1 लिया गया है। क्यों? क्योंकि cos इज इवन फंक्शन, तो जो वैल्यू नेगेटिव एंगल के लिए आएगी वही वैल्यू पॉजिटिव एंगल के लिए भी आएगी। सो याद रखेंगे cos एंड sec इन दोनों में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप एक ही साइड के एंगल को लीजिए। तो 0 से -1 को रिमूव कर दिया गया एंड वी आर टेकिंग ओनली 0 to 1 बिकॉज cos इज इवन फंक्शन। नाउ अब हम तीनों के साथ cos ले लिए हैं, बट यू कैन सी द चेंज, फाइन। ये अब फंक्शन हम अटैच कर रहे हैं, बट व्हाट इज द चेंज? ये 0 बन गया cos 0, लिखा गया है राइट साइड। ये 1 बन गया cos 1, लिखा गया है लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों हुआ है इसको ध्यान से देखिए। ये जो एंगल है दिस मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ओके, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। जरा इधर ध्यान देंगे, ये 0 है और ये π/2 है। 0 से π/2 में ध्यान से देखिए cos फंक्शन नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो याद रखेंगे व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग ए डिक्रीजिंग फंक्शन आपका इस तरह से साइड चेंज हो जाएगा। जो ओरिजिनली लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, बिकॉज आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। और ये भी याद रखेंगे कि cos हमेशा डिक्रीजिंग नहीं है। आपने जो इंटरवल लिया है 0 to 1, इसमें cos डिक्रीजिंग है, क्योंकि π/2 अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है। 0 से 1.57 ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपकी एंगल है 0 to 1, तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर में लाई कर रहे हो, और यदि इसके अंदर में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इन दैट इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसीलिए इस तरह का साइड चेंज हुआ है। cos 0 ये बन गया 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो आपसे मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज cos 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 बना सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें sin x के बारे में पता करना है, क्या मिनिमम वैल्यू है और क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो एंगल है sin x, सेम इसी तरह से हमने स्टार्ट किया -1 to 1। साइन का भी मिनिमम वैल्यू होता है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, सो -1 से +1। देन हमें अब फंक्शन अप्लाई करना है साइन, फाइन, साइन, और ये है -1 से 1। तो देखो साइन का क्या होता है ना, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो माइनस, ये देखो ये है -π/2। ओके, तो -π/2 यहां है और π/2 इज हियर। तो इस बीच में देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -π/2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली -1.57 और π/2 दिस विल बी 1.57। सो -1.57 से 1.57 ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड। ऑब्वियसली -1 से 1 में भी ग्राफ अपवर्ड आएगा क्योंकि इसके बीच में ही लाई करेगा। -1.57 और 1.57 इसके बीच में ही हमारा -1 से 1 लाई करेगा। इज इट क्लियर? मैं फिर से लिख दे रहा हूं, -π/2 टू π/2 यदि हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा -1.57, ये हो जाएगा 1.57 एंड द ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सो इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ऑल्सो। तो देयरफॉर जब हमने साइन फंक्शन लिया तो साइड हमारा चेंज नहीं करेगा। -1 तो ये बन गया साइन -1, 1 तो ये बन गया साइन 1, साइड चेंज नहीं किया है। तो साइन x का मिनिमम वैल्यू आ गया साइन -1, जिसको हम लिख सकते हैं -sin 1।
और मैक्सिमम वैल्यू आ गया sin 1. सो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 4. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5. सो गिवन है sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया, सो वी गेट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x. सो ये गिवन था और ये हमें मिल गया स्क्वायरिंग करने के बाद. नाउ दिस इज आवर गिवन एक्सप्रेशन cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x. सो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x. सो cos स्क्वायर x लेट इट बी cos स्क्वायर x एंड cos टू द पावर 4x की वैल्यू हम ले आ सकते हैं sin स्क्वायर x. तो हमने cos टू द पावर 4x को रख दिया sin स्क्वायर x एंड नाउ we know that cos square x plus sin square x is equal to 1. So this is the answer for problem number 5. Next, problem number 6. So sin x plus cosec x is equal to 2. ध्यान रखेंगे ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम है, दो फंक्शन जिसका रेसिप्रोकल है. अब यहां पर tan एंड cot भी हो सकता है, फाइन. सो sin x प्लस cosec x को हमने लिख दिया 1 बाई sin x इज इक्वल टू 2. बाकी अब सिंप्लीफाई करना है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली ये क्वाड्रेटिक आपके पास आनी चाहिए, विच इज sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. और ध्यान से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज sin x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो sin x की वैल्यू 1 आ गई, और यदि sin x 1 है तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा. तो sin x 1 है तो ऑब्वियसली cosec x will also be 1. तो इस तरह से हमें sin x की वैल्यू मिल गई, cosec x की वैल्यू मिल गई. अब जो क्वेश्चन में बोला गया है, अब बस उस एक्सप्रेशन को हम ले आएंगे. sin x टू द पावर n है, cosec x टू द पावर n है. sin x is 1, cosec x is 1, so 1 to the power n, 1 to the power n, simply answer is 2. Next, problem number 7. So this is given sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ये गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो sin x प्लस sin स्क्वायर इज 1. हमने sin स्क्वायर x को इधर ले आया सो दैट ये cos स्क्वायर x बन जाए. सो वी गॉट sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x. सो वी गॉट sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो sin x will become sin square x, cos square x will become cos to the power 4x, so that ये sin square x अब cos x में convert हो जाए, because everything is in cos. So sin square x is written 1 minus cos square x, cos to the power 4x is as it is cos to the power 4x. Now this cos square x will come to the right hand side, so we get cos to the power 4x plus cos square x is equal to 1. ये हमारा इस तरफ से फाइनल कंक्लूजन आ गया. अब क्वेश्चन को देखते हुए, थोड़ा उसको समझते हुए हमें क्या करना है वो डिसाइड करना होगा. सो वी विल टेक क्यूब बोथ द साइड्स, दैट्स इट. सो दोनों तरफ आपको क्यूब ले लेना है और a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है. केयरफुली सारे पावर्स को हमें इधर मैनेज करना है, कैलकुलेशन बस सही रखनी है. इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 1. 1 का क्यूब 1 आएगा. सिंप्लीफाई कीजिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, सो इसका आंसर 1 है. सो प्रॉब्लम नंबर 7 आंसर इज 1. नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 8. It is given that sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3, मतलब sin के 3 फंक्शन हैं, sin के 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स का सम आ रहा है 3. याद रखना है sin एज वेल एज cos दोनों का ही मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है. याद रखेंगे, ना तो इससे कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है. यदि तीनों का सम 3 हो रहा है तो इसका मतलब है तीनों अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं एंड दैट इज 1. थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा. ईच वैल्यू विल बी 1, देन ओनली वी कैन गेट आंसर 3. तीनों का सम यदि 1 होगा तभी आंसर 3 आएगा. और यदि साइन आंसर 1 दे रहा है थीटा 1 के लिए, तो ऑब्वियसली थीटा 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3, that will be pi by 2, करेक्ट. एंड यदि ये pi by 2 है तो इस एंगल के लिए cos 0 देगा,
इसके लिए भी cos 0, इसके लिए भी cos 0, क्योंकि तीनों ही पाई बाई 2 है। एंड सो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, आंसर विल बी 0। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 13। सो प्रॉब्लम नंबर 13 में गिवन है x, एक एक्सप्रेशन इसको एसोसिएट किया गया है x के साथ, विच इज sin टू द पावर 14 थीटा cos टू द पावर 20 थीटा। ओके, नाउ वी वांट स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर x, दैट मींस x के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी नो दैट sin theta always lies between -1 to +1, ठीक है, -1 to +1। तो इसका मतलब है sin स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 1, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, sin थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1। यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1, फ्रैक्शन में आएगा 0 और 1, डेसिमल में आएगा। तो 0 और 1 जो भी वैल्यू होती है उसका यदि पावर रेज करेंगे, जैसे sin टू दी पावर 4 थीटा करेंगे, स्क्वायर था पहले, अब 4 कर दिए, तो वो रेस्पेक्टिव वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? पावर रेज करने से डिक्रीज कर जाएगी। ओके, 0 to 1 कोई भी वैल्यू हम लेते हैं और उसकी पावर यदि इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो फॉर दिस इंटरवल यदि हमने पावर को इंक्रीज किया है तो आप देख सकते हो रेस्पेक्टिव वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो किसी भी 0 to 1 में किसी भी वैल्यू का यदि पावर 2 है या पावर 14 है तो पावर 14 स्मॉलर होगी। एंड ऑब्वियसली 0 तो मिनिमम है, तो sin टू द पावर 14 थीटा कैन बी रिटन एज मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पावर 2 है और ये पावर 14 है, जो पावर ज्यादा होगी वो छोटी होगी। फाइन, तो आपको दो चीजें कंबाइन करनी है, एक ये 0 से बड़ी होगी और दूसरा sin स्क्वायर थीटा से छोटी होगी। सो दिस बिकम्स इक्वेशन 1। सिमिलर आप रीजन इसके लिए भी दे सकते हैं। सो पावर 20 है, पावर 2 है, तो ये पावर ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी, क्योंकि फिर से cos स्क्वायर थीटा ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1। इसके साथ भी वही रूल है। डन, इस तरह से हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो 0 + 0 वी आर गेटिंग 0। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, वी हैव रिटन हियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, विच विल बिकम 1। एक और बात बस ध्यान देने वाली है कि ध्यान रहे, देखो इन दोनों का सम यदि 0 हम बोलेंगे, दैट मीन्स दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव का सम यदि 0 आ रहा है दैट मीन्स दोनों 0 होने चाहिए। लेकिन साइन एंड कॉस फॉर एनी एंगल कैन नॉट बिकम 0 एट ए सेम टाइम। किसी एक एंगल के लिए दोनों 0 नहीं हो सकते, एक 0 होगा तो दूसरा 1 हो जाएगा। तो इट इज नेवर पॉसिबल कि इन दोनों का सम कभी इक्वल टू 0 हो। तो हमें ये इक्वल टू हटाना पड़ेगा। इक्वल टू 0 का केस कभी नहीं आएगा यदि दोनों को ऐड कर देंगे। सो ओनली हियर इक्वल टू यू हैव टू रिमूव। तो इंटरवल पूछा गया है तो आप लिख सकते हो इंटरवल इज 0 to 1, 0 ओपन 1 क्लोज, दिस इज द इंटरवल। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 गिवन है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और हमें फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम, ये गिवन थी, हमने लिख लिया। इस एक्सप्रेशन को हमने z ले लिया है, मतलब लेट दिस इज z। अब हमने पहले वाली एक्सप्रेशन को स्क्वायरिंग कर दिया। सो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। सो पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग किया, हमें ये मिल गया। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे, सो वी गेट दिस। सो नो प्रॉब्लम, स्क्वायरिंग किया गया है। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना चाहते हैं, तो पहली बात ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे तो ये 25 sin स्क्वायर थीटा है, ये 25 cos स्क्वायर थीटा है। ऐड करेंगे, 25 कॉमन आ गया, वी आर गेटिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये देखेंगे 9 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा ऐड हुआ तो 9 कॉमन ले लिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस साइड 25 प्लस z स्क्वायर। अब
ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी. So we are getting 25 plus 9 in the LHS. And RHS we are getting 25 plus Z square. 25 cancel हो गया, Z square is 9. And so Z is plus minus 3. So this was about trigonometric functions. हमने इसके 2 क्लासेस किए हैं. Second class was also on trigonometric functions. Third class also on trigonometric functions. Okay.